Hello students, welcome to the online classes. Today we will move further with the same chapter, that is chapter number 3. This is chapter number 3, Word 2016. We have covered the meaning of Word 2016, how to start the Word 2016, and today we will start up or move up with the next topic, that is components of Word 2016, creating a new document, entering a text in a document, selecting a text in a document. So children, take out your books and start reading or understanding along with me so that you will understand the chapter with the better concept. The topic is components of Word 2016. The components of Word 2016 Windows. The first we see various components on the screen on opening Word 2016. Whenever you open a Word 2016, I hope you all have done the practical on the Word. आप लोगों ने practical किया था Word पे. Whenever you open Word 2016, जैसे ही आप Word का विंडो ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे components हैं जो आपको स्क्रीन पे शो करते हैं. These are two windows displayed on the screen. How many windows displayed on the screen? 2. What are the two windows? Application window and document window. First we see application window. What is application window? Application window is the larger window which helps the user to interact with Word program. Application window क्या है? Larger window है. ये help करती है to interact the Word. जो भी programs होते हैं Word पे उस पे interact करने के लिए. Second is document window. Document window is the window inside the application window where the user can type, edit and format the text. So two windows होती हैं, application window and document window. एप्लीकेशन विंडो सबसे बड़ी विंडो होती है. उसके अंदर एप्लीकेशन विंडो के अंदर कौन सी विंडो होती है? डॉक्यूमेंट विंडो. इन द डॉक्यूमेंट विंडो फर्स्ट आपको वहाँ पे टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो. जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है यू कैन डू वेरियस थिंग्स ऑन दैट विंडो. Let's learn more about various other components of Word 2016 document window. First is title bar. आपने स्क्रीन पे देखा होगा title bar. Now, first is title bar. Where is title bar located? Title bar कहाँ होता है? It is located at the top of the screen and displays the name of the document followed by the application name word. टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है, सबसे ऊपर होता है. जो बार सबको सबसे ऊपर आपको दिखता है जिसमें आपका टाइटल शो करता है कि आपने विंडो कौन सी ओपन कर रखी है और उसके साथ एक्सटेंशन लगा होता है वर्ड का. दैट इज़ नोन एज टाइटल बार विंडो. टाइटल से ही आपको समझ में आता होगा कि जो भी बार, जो भी मेन्यू और जो भी बार आपको टाइटल शो करे, टॉपिक शो करे, दैट इज़ नोन एज टाइटल बार. नाउ द सेकेंड इज फाइल टैब. व्हाट इज़ फाइल टैब? इट इज़ प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर इन द टाइटल बार. जो टाइटल बार के सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे जो भी बार शो करता है, जो भी टैब शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइल टैब. When we click on this tab, we get various options with which we can create, open, save and print the document. एक फाइल ऑप्शन आपको ऊपर सबसे लेफ़्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे सपोज़ ये आपका टाइटल बार है तो लेफ़्ट कॉर्नर पे जो फाइल शो करती है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें एक पॉपअप मेन्यू ओपन होके आएगा और उस पॉपअप मेन्यू पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लाइक ओपन, सेव, एग्जिट, क्लोज, एंटर, वेरियस थिंग. दिस इज़ नोन एज फाइल टैब. उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल टैब. सेकेंड इज क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज़ लोकेटेड इन द टाइटल बार टूवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. It contains set of frequently used commands such as saving a document, undo, typing, repeat, typing. By default, save, undo and repeat commands appear in the quick access toolbar. और फाइल टैब के जस्ट बगल में क्विक एक्सेस टूलबार होता है. क्विक एक्सेस टूलबार में आपको
बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन दिखते हैं, सेव करना, सेव एक छोटी सी फाइल बनी रहती है फ्लॉपी की तरह, अंडू करना, रिवर्स एरो बना रहता है, ठीक है, रीडू करना, उसमें भी एरो बना रहता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच इज़ डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और जहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ दिखेंगी उसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट इज टैब्स। टैब्स आर लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आपके टैब्स लोकेटेड होते हैं। अंडरस्टूड? व्हाट आर द टैब्स? फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प आर वेरियस टैब बटन्स। दीज आर नोन एज टैब्स। बहुत सारे ऐसे टैब्स बटन वहाँ पे यूज़ होते हैं, दिखते हैं आपको जब आप जैसे ही वर्ड को ओपन करेंगे। और टैब्स कहाँ प्रेजेंट कर होते हैं? टाइटल बार के जस्ट नीचे। नेक्स्ट इज रिबन. Ribbon contains all the tabs and gives us options related to each tab. As we click on a tab button, its relevant option gets displayed on the ribbon. This makes easy for the user to see and perform the desired operations on the document. रिबन्स क्या होते हैं? किसी टैब के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही आप किसी टैब पे अपना कर्सर लेके जाओगे, अपने माउस का एरो की लेके जाओगे, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन शो करता है, चीज़ें बताता है वो क्या कर, उसका काम क्या है, उस टैब का काम क्या है, उस मेन्यू का काम क्या है, दैट इज़ नोन एज रिबन। और जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिबन। नेक्स्ट इज रूलर्स. अ वर्ड विंडो हैज़ 2 रूलर्स. कितनी रूलर्स होती हैं? 2. The horizontal ruler present at the top of the document measures the width of the document. The vertical ruler on the left side measures the height of the text area. रूलर 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मीन्स सबसे ऊपर वाली रूलर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. और एक वर्टिकल रूलर होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर. ये आपकी विड्थ मेजर करती है, ये आपका क्या मेजर करता है? व्हाट यू हैव स्टडीड. लेफ्ट जो होती है वो हाइट मेजर करती है, ठीक, कि उस डॉक्यूमेंट की हाइट क्या है और उस डॉक्यूमेंट्स का विड्थ क्या है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया सबको पता है, जहाँ पे आप टाइप करते हो उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया. इट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर द यूज़र कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. Next is status bar. It is located at the bottom of the screen. It displays important information about the currently open document like number of pages, number of words, language, zoom slider, etc. स्टेटस बार कहाँ प्रेजेंट होता है? एट दी बॉटम, सबसे नीचे. और उसमें क्या क्या शो करता है? आपका पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स यूज, लैंग्वेज यूज्ड, कौन से पेज आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है. एक छोटे छोटे नीचे फोल्डर बन के आते हैं ना, जो मिनिमाइज़ होके जाते हैं, उस फोल्डर्स में जो भी बार में वो प्रेजेंट होते हैं, उस बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार. स्टेटस बताता है करेंटली क्या स्टेटस है आपके डॉक्यूमेंट का. एंड द लास्ट इज स्क्रॉल बार. एज यू ऑल नो 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार देयर. एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं. लेट्स रीड. स्क्रॉल बार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और जो इधर प्रेजेंट होते हैं उसको वर्टिकल बोलते हैं. द वर्टिकल स्क्रॉल बार लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स राइट साइड प्रेजेंट होता है. इट इज़ यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन अक्रॉस द डॉक्यूमेंट. और उसका काम क्या होता है? पेज को अप लेके जाना, पेज को डाउन लेके जाना. The horizontal bar located at the bottom of the document is used to move the page left or right across the document. और जो horizontal bar होता है, scroll bar होता है, उसका काम क्या होता है? या यहाँ पे होता है आपका और यहाँ पे होता है. तो जो नीचे वाला होता है, जो horizontal वाला होता है, उसका काम होता है पेज को राइट लेके जाना, पेज को लेफ़्ट लेके जाना. वर्टिकल का काम क्या होता है? पेज को अप लेके जाना, पेज को डाउन लेके जाना. अंडरस्टूड? So these are the components of Word 2016. Let's see how to create a new document. आपके new document create कैसे होते हैं? First is follow these steps to create a new document. First is click on File tab. अभी हमने बताया File tab left corner पे present होता है, उस पर आपको click करना है. जैसे ही आप click करोगे एक मेन्यू खुल के आएगा, वो उसको उस मेन्यू को आप क्या बोलते हैं? पॉपअप मेन्यू. ठीक है.
सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, आप क्या सेलेक्ट करोगे, न्यू ऑप्शन। क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द राइट साइड पेज। जैसे ही न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो एक बहुत सारी स्लाइड्स खुल के आएंगी, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स वर देयर। तो आप कौन सी स्लाइड्स पे क्लिक करोगे, ब्लैंक वाली पे, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। Now you will see a new document on your screen with a temporary name document 1 will appear। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा और उस न्यू डॉक्यूमेंट का नेम क्या होगा, document 1। Understood? Now this is how you create the document। First file tab, go to file tab, then new option, then blank document, and last a new page will appear। So if you have children, if you have the laptop or computer in your home, please do these two practicals। आप इस अपनी स्क्रीन खोल के देखोगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके वर्ड्स में प्रेजेंट हैं और कैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ फॉर द फर्दर टॉपिक्स वी विल मूव फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो गो थ्रू all the pages done till now till page number 29 and do the short answer question and the exercise of chapter 3 in your computer copy। Thank you class, have a nice day।